First illustration is here. Prepare a trial balance. Suppose in a question आपको कुछ balances given है. Let's say cash 10,000, machine 30,000, loan 50,000, debtors 70,000, creditors 60,000, capital 1 lakh, investments 70,000, rent 20,000, salary 20,000. Thereafter, bills receivable 40,000. Few more investments. I'm putting the value here. Let's say investment 60,000, and thereafter outstanding expenses 1 lakh. This is 60,000, and finally outstanding expenses, let's say 90,000, and finally one more discount received, that is 10,000. This is a question given to us, and same type of question are given in the book. What we have to do, yes, ask me. Sir, investment is written 2 times. Twice हो गया. Investments are there twice. So here investment को rub कर दे. Just write down here building. Okay. Done. Correct. So investments are cancelled one time. Only one investment, and other one is building. So what we have to do here, we are directly prepared trial balance. No need to make journal, no need to make ledgers. The rules are in front of you. It is written there. Everyone just find out कि किस account का balance कौन सा होता है and put in the format of trial balance. You remember the format of trial balance? I'm just moving the camera here. लिखा आप लोगों ने सबने question को? Everyone? Write down this question first. Yes. And then, yes, and then prepare a format of trial balance. You know the format, of course. So I'm just moving the camera here, correct, to this side. Okay. So here we have to prepare a format of a trial balance, and tell me one by one where I should put the balance of each ledger account. It's a very, very simple lesson. Who remember the rule? Lesson is over. Yes. Who remember the headings of trial balance? Do you know? Yes, sir. What are the headings? Yes, first. Serial number. Serial number, accounts Yes. name, debit and credit. Very good. First, smallest column for serial number. This is for what? Second column is for Name of account. name of account, and remaining 2 columns are for what? Debit amount. DR balance and CR balance. Correct? Okay. So shall we start one by one? Tell me. रट्टा मत मारना कि बस ये आए करने. Tell me the reason को कहाँ आ रहा है. First one, that is cash account. Think and tell me, cash comes under which category?
Asset. Cash is, yes, very good. Cash is our asset, and asset always have a debit balance. So I put here on debit side. Got it? Very simple. Cash is our asset. Cash is not a liability, not a capital, not income expenditure. It is just a asset, और asset always debit में आती है. आया समझ में आपको? Second one is which one? Machine. मशीन का बैलेंस क्या होगा? मशीन का कौन सा नेचर इन पांचों में से? Debit. Asset. Machine is our, of course, हमारी asset है. That is how much? 30,000. Getting me or not? Everyone? है सिंपल. अकाउंटेंसी को बड़ा सिंपल पढ़ा रहा हूँ. इतना सिंपल नहीं पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ा सकता. अब बहुत सिंपल वे में पढ़ रहे हैं. तो सिंपलेस्ट में है मशीन 30,000. थर्ड वन टेल मी लोन. अब बताओ मुझे लोन कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा? असेट तो हमारी है नहीं. लोन हमेशा यूजुअली हम लेते ही हैं लोन. तो लोन को हम क्या मानेंगे? लायबिलिटी. लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? ऑलवेज इट इज अ Credit. क्रेडिट बैलेंस. तो कहां पुट करूंगा मैं? एट क्रेडिट साइड लाइक दिस. कंटिन्यू करें. अब आप कंटिन्यू करते जाओ. जिसको नहीं आ रहा मैं समझाते जाऊंगा, जिसको आता है वो करते जाएं. ठीक है? और लास्ट में टोटल मस्ट बी इक्वल. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज विच वन? Debtors. डेटर्स. डेटर्स क्या है हमारी? एवरीवन Asset. Asset. असेट है. असेट का बैलेंस क्या होता है? ऑलवेज Debit. debit like this. Thereafter creditors, they are our liabilities, obligations है हमारे. They always comes under the where at liability means credit side में आएंगे. Thereafter sixth Capital. Capital. capital always क्या होती है? Always credit. बिल्कुल credit. Very good. Thereafter Investment. investments, how much? asset हमारी डेबिट होगी. एट्थ रेंट. अब आप कंफ्यूज हो गए कि रेंट हमारा रिसीव है एक्सपेंस. इफ नथिंग गिवन तो हम क्या अज्यूम करते हैं? बिल्कुल बताया आपको मैंने. Expense. बिल्कुल एक्सपेंस मानेंगे. और इफ एक्सपेंस है तो क्या होगा? वो डेबिट और क्रेडिट? Debit. इट इज डेबिट like this. Correct. Thereafter ninth one Salary. is salary. अगेन कंफ्यूज हो गए. सैलरी रिसीव की, पे की. इफ नथिंग मेंशन हम क्या मानेंगे? हमने सैलरी पे की होगी. और पे की दैट मींस इट इज आवर एक्सपेंडिचर. अगेन डेबिटेड. सेकंड लास्ट और फ्यू मोर आई थिंक. फोर्थ लास्ट इज द 10th बिल्स रिसीवेबल. टेल मी बिल्स रिसीवेबल कम्स अंडर विच कैटेगरी? असेट है कि लायबिलिटीज है? कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर? इट इज एन असेट. Asset. ऑलवेज असेट. ऑलवेज असेट है. और असेट ऑलवेज क्या होती है? बिकॉज इट इज असेट मानते हैं इसको. ऑलवेज डेबिट करेंगे इसको. हाउ मच इट कम्स? 40,000. करेक्ट. और कुछ? एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट वन 11th इज Building. building is what? Asset हमारी. So here comes 60,000. Very simple. Thereafter 12th, second last, outstanding expenses. Yes, Liability. it is our liability. हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी, आपको याद होगी. उसमें हमने इसको लाइबिलिटी में शो किया था. तो it is our liability. That means comes at where? At credit side. और finally 13th is which one? Discount received account. Received किया है. That means what? Received means it is our income, revenue. और revenues क्या होती है? Always Credit. always होती हैं credit. So like this we you have been given many accounts in the book. एग्जाम आपको given होंगे. आपको सिर्फ डेबिट क्रेडिट में पुट करना है इसको. Now make total. It must be equal. Equal नहीं है, that means something wrong. Start करो and check करो जल्दी से. 50 plus 60 110 plus 1 lakh 2 lakh 10,000 plus 1 lakh. Here comes 3 lakh 10,000. Is it? मैथ्स वाले चेक करना आप लोग. अच्छी मैथ्स होती है आप लोगों की, थोड़ी सी शार्प होगी. इधर यहां पर देखो 10 plus 30 40 plus 70 110 plus 70 180 plus 20 कितना हो गया? 2 lakh.
और समथिंग कुछ हो रहा है, मिस हो रहा है समथिंग? बिकॉज क्वेश्चन अपने अंदाज से बनाया था क्वेश्चन, तो देख लो क्या मिसिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इज देयर समथिंग मिसिंग? ज्यादा हो रहा है? हाँ तो ज्यादा होता है बिकॉज यस यस वेरी गुड। तो वन थिंग की बात सुन लें आप लोग, बिकॉज हमने क्वेश्चन अंदाज से बनाया है तो दैट मीन्स अभी हम क्या करेंगे, अब मेरे रूल्स ध्यान समझना, नाउ लिसन केयरफुली। बिकॉज हमने क्वेश्चन अंदाज से बनाया था तो अगर मैं बिल्डिंग को 50, एग्जाम में क्या होगा इक्वली होगा, पेपर चेक करके आता है, तो बिल्डिंग को अगर मैं कर दूं 50,000, ध्यान सुने, दैट मीन्स इट इज 310 और 310 हो जाएगा। अब और आगे सुने, बट समटाइम्स व्हाट विल हैपन, आपको सब कुछ गिवन है, बिल्डिंग को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, बिल्डिंग रिमेन 60,000। अब यहां पर आपने सब कुछ सही किया बट स्टिल योर ट्रायल बैलेंस इज नॉट टेली, हमारी ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं हो रही है, बिकॉज डेबिट इज हाउ मच 320, क्रेडिट इज हाउ मच 310,000। अब क्या करेंगे, टेल मी व्हाट शुड वी डू, बिकॉज ट्रायल बैलेंस का मैच होना कंपलसरी है, तो व्हाट वी डू, बस छोड़ देंगे? एनीवन? अगले सो साल लिसन हियर, में हाँ यस, अगले साल में वो बैलेंस बन जाएगी। तो बैलेंस कहां दिखाएंगे 10,000 को, किस अकाउंट में दिखाएंगे? सो लिसन मी हियर, बाय और एक हाँ क्या करेंगे यहां पर, बाय बैलेंस? नहीं, यू आर रॉन्ग, लिसन मी हियर। सो हमने पूरी कोशिश की, सब कुछ राइट है, हमारा जर्नल भी राइट है, लेजर भी राइट है, हमने बैलेंसेस को बिल्कुल प्रॉपर रूल्स के थ्रू पुट किया, सब कुछ करेक्ट है, बट इवन देन अगर हमारी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करती है, देन व्हाट वी हैव टू डू, जहां डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस कितना अमाउंट का है, एनीवन? 10,000 10,000। 10,000 10,000 किस तरफ शॉर्ट है इक्वल करने के लिए, क्रेडिट साइड में शॉर्ट है। credit side आई एम पुटिंग हियर 10,000 रुपीज हियर, लिसन, ये रूल्स हैं बुक का, मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूं, हमारे ट्रायल बैलेंस नहीं मैच कर रही है बाय द वे, सब कुछ करेक्ट करने के बाद में, तो व्हाट यू टू डू, आप उस बैलेंस को पुट कर दो यहां पर, और यहां हमें एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उस अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट, रिमेंबर दिस नेम, नाम क्या है, सस्पेंस अकाउंट, दैट्स ऑल। बुक में है, बुक में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन है, आपकी ट्रायल बैलेंस इज नॉट टेलिड, आपकी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगी। अब ऐसा भी नहीं आप रोंगली हर कुछ करके सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, व्हाट दे डू, कैश को लिख दिया इधर, मशीन को गलती से क्रेडिट कर दिया, लोन को डेबिट कर दिया, डेटा सोल्ड सीधे कर दिए, इक्वल नहीं हो रही, दे ओपन द सस्पेंस अकाउंट और हो गया। नहीं, सस्पेंस अकाउंट, इसको बंद करें माइक को, सस्पेंस अकाउंट विल बी ओपन ओनली एंड ओनली व्हेन आपने सब कुछ करेक्टली पुट किया, एंड इवन आफ्टर दैट द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टेली, देन ओनली यू कैन ओपन अ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट की कोई डेफिनेशन नहीं होती, बिकॉज नाम ही सस्पेंस है ना, इट इज अ वेरी सस्पेंस अकाउंट, तो नाम सस्पेंस है। तो जस्ट राइट डाउन नोट हियर, और आज का हम ओवर करेंगे, फिर अटेंडेंस का काम जल्दी से, है ना, कल इसको आगे बढ़ाएंगे, डोंट मिस द क्लास। लेसन ऑलमोस्ट पूरा हो गया, 90% पूरा हो चुका है, 10% बाकी, कल करके क्वेश्चंस करेंगे, 3 दिन में खत्म करेंगे, वेडनेसडे तक या थर्सडे को लेसन पूरा। तो जल्दी से एक नोट लिख दें और उसके बाद अपन अटेंडेंस लेके फिनिश करेंगे, नोट ऑफ लेसन, वेरी सिंपल। सो एक नोट लगा दें, नोट इज दैट, 2 लाइन का है, फिनिश करेंगे। आफ्टर रिकॉर्डिंग all the transactions, after recording all the transactions into the journal, comma, an accountant prepares ledger and trial balance. An accountant prepares ledger and trial balance. Full stop. The total of trial balance must be equal. आप लोग अपना कैमरा भी ऑन करते हैं, मैं अटेंडेंस ले लूंगा बीच में ना, आप जितना ऑन करो लिखते भी जाएं। एवरीवन पुट ऑन योर कैमरा, और मैं अटेंडेंस बीच में ले लूंगा और आप लिखते भी जाएं जल्दी से।
the trial balance must be, the total of trial balance, sorry, must be equal. Must मतलब होना ही चाहिए, must be equal, but must be equal, but Anisha, Yash, on करो, but Tanishq also, but sometimes the total of trial balance does not tallied. Yes, you are not writing. But sometimes the total of trial balance does not tallied. Tallied means equal. Tallied, then we have to open. Then we have to open a suspense account. We have to open a suspense account with the difference in amount. Means जितना difference है ट्रायल बैलेंस के अंदर उस अमाउंट के थ्रू हम with the difference in amount. करेक्ट. इसको कल हम थोड़ा और समझ लेंगे आगे बढ़ा के. और तनिष्क को अनीशा ने कैमरा ऑन नहीं किया बेटा, अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा मैं, प्रेजेंट लगाऊंगा आपको. जल्दी से ऑन करो, डू इट फास्ट. अनीशा इज नॉट देयर, आई थिंक आई विल पुट एब्सेंट. ठीक है, तो इसको आप स्टडी करें, कल इसको मैं पूछूंगा आप लोगों से और कल इसके हम क्वेश्चंस मिलाना शुरू करेंगे. ठीक, चलो बाय, टेक केयर, सी यू.